أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. آیات کا ترجمہ ہے، جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لے کر ذکر کیا جائے، ان گھروں میں صبح شام وہ لوگ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دیں گے، اور اللہ جل جلالہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے دے دیتے ہیں۔ یہ آیات آپ حضرات کافی دنوں سے سن رہے ہیں، اور ان میں جو مضمون چل رہا ہے وہ ہے اللہ کے گھروں کا ادب کرنا، اللہ کے گھروں کا خیال رکھنا، اللہ کے گھروں کو بنانا، اور جتنی مساجد کی تعمیر ہوگی، مساجد بنیں گی اور مساجد کو سنبھالیں گے لوگ، سنبھالنے والے لوگ سنبھالیں گے جو اس کو ظاہر میں بھی خیال رکھیں گے اور اس کی اندرونی نظام کا بھی خیال رکھیں گے اور اس کی روحانیت کو بھی برقرار رکھیں گے، تو ایسے لوگ کیا ہیں، وہ اللہ کو اچھے لگتے ہیں، ان کو نور ہدایت ملے گی، ان کے نسلوں میں سلسلے چلیں گے، ان کے نسلوں میں سلسلے، اس لیے کہ مسجد سب سے پہلے اگر بنائی ہے تو اللہ نے بنائی ہے۔ مسجد اگر دنیا میں کوئی مسجد بنی ہے تو وہ اللہ نے بنائی ہے، فرشتوں کے ذریعے سے حکم دیا کہ بیت اللہ بناؤ، تو سب سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیارات ملے، کہاں پر جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو سب سے پہلا کام حضور نے مسجد بنائی۔ قبا کے اندر جو مسجد بنی ہے وہ حضور نے بنائی ہے۔ کلثوم ابن حدم صحابی تھے، ان کی زمین تھی اور بڑی قیمتی زمین تھی، انہوں نے اللہ کے نام پہ وقف کر دی۔ اب قیامت تک جو نمازیں پڑھی جائیں گی تو کلثوم ابن حدم صحابی کے نامہ اعمال میں لکھی لی گئے۔ کب سے ہے دیکھیں آپ، 1500 سال ہو گئے اور وہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، اس میں بھی سب سے پہلی بنیاد مسجد نبوی کی رکھی۔ تو یہ جو سب سے پہلا گھر بنایا وہ اللہ نے بنایا، تو اللہ پاک نے ہم میں سے کسی کو ایسی طاقت دی ہو، وسعت دی ہو، تو وہ ایسی تلاش میں رہے کہ میری زندگی میں ایک مسجد تو بن جائے میری طرف سے، کہ میرے والدین کو اور ان کا صدقہ جاریہ ہو جائے۔ پھر بنا کر کے چھوڑنا نہیں ہے، بنانا بہت آسان ہے، پھر سنبھالنا مشکل ہے۔ مسجد کا سنبھالنا، اس کا پورا نظم سنبھالنا اور اپنی نسلوں کو وصیت کرنا کہ یہ مسجد ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے تم نے۔ تو مسجد کا بنانا، پھر مسجد کا سنبھالنا، سنبھالنے میں پھر دونوں باتیں ہیں، ظاہر کو بھی سنبھالنا، اس کی تعمیرات ہیں، اس کے خرچ اور اخراجات ہیں، اس کی روحانیت کو سنبھالنا، اس کی روحانیت کیا ہے، اس کے اندر درس و تدریس ہے، اس میں نمازیں ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ صحیح لوگوں کے ہاتھ میں ہوں۔ ایسا نہ ہو مسجد بنا دی بس دے دیجیے ہم نے مسجد بنائی ہے، کون ہے اس مسجد کے اندر، بس ہم نے دے دی، بس اللہ کا گھر بنائے، تو ایسا پاگلوں والا کام کرنا نہیں ہے۔ مسجد بنانی ہے، پھر اس کو اہل حق کے ساتھ جوڑنا ہے، جو حق والے لوگ ہیں، جو اس مسجد کو غلط استعمال نہ کریں اور مسجد کا خیال رکھیں اور مسجد کے اندر صحیح چیزوں کو رواج دیں۔ مسجد بنانا آسان، پھر مرتے دم تک
उस मस्जिद को संभालना और उसको गलत किस्म की चीजों से उस मस्जिद को बचाना, ये भी हर मुसलमान के जिम्मे जरूरी है। तो पहले दर्स में हमारी आदाब का बयान हुआ। गुज़िश्ता दर्स में जो कल गुजरा है उसके अंदर आपके सामने मस्जिद के जो अहादीस मुबारका थी, मस्जिद के जो फजाइल थे उसका बयान हुआ। और आज का जो दर्स है उसमें आदाब जो हजरात ने लिखे हैं वो आपकी खिदमत में बयान करके दर्स को ख़त्म करेंगे। तो मस्जिद के जो आदाब हैं वो 15 आदाब हजरात ने लिखे हैं, 15 चीज़ों का जिक्र किया है। पहली बात यह है कि मस्जिद में पहुंचने पर अगर कुछ लोगों को बैठा हुआ देखे उनको सलाम करें। जैसे पहुंचे अस्सलाम वालेकुम, लेकिन इस सलाम को इतने बुलंद आवाज में किया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, अब वो दाएं बाएं लोग सब परेशान हो गए, सबकी जिक्र खराब हो गया, सबकी तस्बीहात खराब हो गई। एक खामोशी के साथ अस्सलाम वालेकुम, जवाब देने वाले भी खामोशी के साथ वालेकुम सलाम, मतलब इतना हो कि बस सुन ले और जवाब देने वाले इतना जवाब दे के वो बस जवाब दे दे। वो चीख करके सलाम करना, सब मुतवज्जे हो गए यार ये क्या हुआ, और सब ने जोर से कहा वालेकुम सलाम। तो ऐसा ना हो, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में, ये बात मैं कहाँ से कह रहा हूँ, अभी जो बात आ रही है ये मैं हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ आपको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते थे, हज़रत आयशा फरमाती हैं इतने धीमे आवाज से सलाम करते थे कि जो जाग रहा होता था वो सुन लेते थे, और जो सो रहा होता था उसका खलल नहीं होता था, उसको पता भी नहीं चलता था। जो जाग रहा होता था वो हुजूर का सलाम सुन लेते और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल को जवाब भी दे देते, और जो सो रहा होता था वो नहीं। हम तो घर में आते एक तूफान मच जाता है जनाब, जो उस टॉस दरवाजा लगता है जी, और फिर बेल बजती है बहुत जोरदार से, और वो चीख करके अंदर दाखिल होते हैं। तो ऐसा ना हो, पुरसुकून अंदाज में आदमी घर में जाए और आराम से सलाम करे, निकलते वक्त भी सलाम करे, ये भी अदब बताए हैं, और दाखिल होते वक्त भी सलाम करें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर खाली घर है फिर भी आदमी सलाम कर ले, इसलिए कि फरिश्ते होते हैं, अल्लाह की दूसरी मखलूक होती है। तो सलाम के साथ, सलाम क्या है, अल्लाह का जिक्र है, तो आप अल्लाह के जिक्र के साथ घर में दाखिल हो गए और अल्लाह के जिक्र के साथ आप घर से निकले। तो सबसे पहले ये है कि पहुंचने पर अगर कुछ लोगों को बैठा हुआ देखे उनको सलाम ना करे, सलाम करे, और अगर कोई ना हो तो फिर भी जबान से कहे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर भी सलामती हो और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती हो। अल्लाह के नेक बंदे बहुत सारे होते हैं मस्जिदों के अंदर, हमें नजर नहीं आते लेकिन होते हैं, तो उनको सलाम करें अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ऐसे ही घर में जाए तो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। लेकिन ये उस सूरत में है जबकि मस्जिद के हाजरीन नफली नमाज या तिलावत तस्बीह में मशगूल ना हो, वरना जो लोग अमल में मसरूफ है उनको सलाम करना ठीक नहीं है। अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो आप नाराज नहीं होंगे, यार हमने सलाम किया आपने जवाब नहीं दिया, वो अमल में है, तिलावत में है, और आपने नमाजी आदमी को तिलावत, जैसे लोग वजू कर रहे हैं और आते हैं जी गपशप लगा, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, वो कहते हैं जी वालेकुम सलाम, जबकि वजू करने वाले को सलाम नहीं करना चाहिए। और अगर वजू करने वाले ने जवाब नहीं दिया तो फिर नाराज भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो एक अमल के अंदर मसरूफ है। दूसरा अदब यह है कि मस्जिद में दाखिल होकर बैठने से पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़े। ये चीज मतलब ये है कि अरब हजरात के अंदर है, लेकिन उसमें भी उनमें भी ये गलती है, अरबों के अंदर भी ये गलती है कि वो क्या करते हैं, वो मकरूह वक्त का ख्याल नहीं करते। जब भी आ जाएंगे, असर के बाद पहुंचे तो 2 रकात पढ़ेंगे, फजर के बाद पहुंचे तो 2 रकात पढ़ेंगे, तुलू और गुरूब का भी ख्याल नहीं करेंगे। और हमारे यहाँ ये दस्तूर है, हम में से जिस वक्त भी आ जाए, बहुत अच्छे वक्त में आ जाए, सीधे बैठ जाएंगे, वो 2 रकात पढ़ते ही नहीं है। तो मस्जिद का हक ये है कि जब मस्जिद में पहुंच जाए, मकरूह वक्त ना हो तो 2 रकात पढ़ लें, लेकिन आप सुन्नतें घर से पढ़ के आए और मस्जिद में आ गए, अब आप कहेंगे मैं 2 रकात पढ़ लूं, तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि फजर की अजान के बाद से लेकर सूरज के तुलू होने तक नफल पढ़ने की इजाजत नहीं है। आप मगरिब के लिए तशरीफ लाएं और असर की नमाज हो चुकी है तो 2 रकात नहीं पढ़ सकते।
हाँ, अगर आप जोहर के लिए तशरीफ लाए और सिर्फ 4 ही रकात का वक्त है, अगर 6 का वक्त है तो पहले 2 पढ़ लें फिर 4 पढ़ लें, और अगर 4 ही का वक्त है तो 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा में भी यानी हल्की सी ये नियत शामिल कर सकते हैं कि भाई तहियतुल मस्जिद की नियत भी मैं करता हूँ। असर से पहले पहुंच गए तो उसमें भी तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं। इसी तरह ईशा से पहले पहुंच गए तो मगरिब के बाद का वक्त है तो तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं। तहियतुल मस्जिद का मतलब क्या है? तहिया का लफ्जी तर्जुमा है सलामी देना, सलाम करना। तो गोया के मस्जिद की सलामी यह है कि वहां उसको अमल से आबाद करे आदमी। मस्जिद की सलामी क्या है? उसको अमल से आबाद करे। तो दूसरा ये है कि मस्जिद में दाखिल होकर बैठने से पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ ले, और ये हुक्म है हदीस में, तुम में से जो भी मस्जिद में आ जाए वो बैठने से पहले 2 रकात पढ़े, लेकिन इन तमाम शराइत के साथ। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये शराइत किसने जिक्र की है? जी हाँ, ये शराइत इस हदीस में तो नहीं है, लेकिन अहादीस के मजमूए को जब आप देखेंगे, पूरे नक्शे को, उसमें ये शराइत मिलती हैं जो हजरात ने लिखी है। इसलिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं हदीस में तो ये है भी आगे तो 2 रकात पढ़ लो, ये शराइत कहाँ से आए? तो ये शराइत हुजूर की पूरी जिंदगी के मजमूए से निकाले। सिर्फ इस हदीस के लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, बल्कि हुजूर की जिंदगी को देखेंगे, बड़ों की बात सुनेंगे, बड़ों की पैरवी करेंगे तो शराइत समझ में आ जाएंगे, और अगर खुद से समझने की कोशिश करेंगे तो शराइत समझ में नहीं आएंगे। तो ये उस वक्त है जब नमाज पढ़ना मकरूह ना हो, ऐन सूरज के तुलू के वक्त या गुरूब के वक्त या जवाल के वक्त। तीसरा ये है कि मस्जिद में खरीद और फरोख्त न करें, मस्जिद में खरीद और फरोख्त न करें, मस्जिद में कोई डीलिंग न करें। कहते जी यार बरकत की जगह है, चलो यार यहाँ डीलिंग करो, नहीं, ये इबादत की जगह है। हाँ, ये जिक्र की जगह है, ये तिलावत की जगह है, ये नमाज की जगह है, ये डील की जगह नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ राब्ते की जगह है। ये भी क्या है? आपने अहादीस में मना फरमाए हैं। इसी तरह चौथा ये है कि वहां तीर और तलवार ना निकालें। यानी अल्लाह के रसूल जमाने में, यानी हर आदमी, जैसे गांव देहात में बाज़ इलाकों में हमारा जाना होता है, तो जो आदमी मस्जिद आता है उसके पास बंदूक होती है, दुश्मनदार लोग होते हैं, तो वो मस्जिद आते हैं, कबाइल की मसाजिद होती हैं, वो बंदूक साथ लाते हैं। उस जमाने में तीर लाते थे, तलवार लाते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर लाना जरूरी है तो उसकी धार को छुपा करके लाओ। इसी तरह अगर बंदूक लाना जरूरी है तो बिल्कुल उसको ऐसा ना हो बिल्कुल लोड है, बस बटन दबाने की देर है और फायर हो जाएगी, तो ऐसा ना हो। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर और तलवार के बारे में फरमाया। तो उलमाए किराम ने बंदूक के बारे में, और इस तरह फिर छुरी तलवार छुरी वगैरह की बात आई तो छुरी के बारे में अल्लाह के रसूल का फरमान ये है, तुम में से जब कोई तलवार या छुरी इस तरह ले जाए तो उसकी धार को सामने न रखे। मुमकिन है कोई बच्चा आ जाए, कोई सामने से आ जाए तो धार लग जाए, उसको नोक लग जाए। तो जब भी छुरी कांटा कोई भी ऐसी चीज देना हो तो उसको उसकी धार को नीचे करके इस तरह करके वो दिया करो। ये भी बच्चों को बता दें, बच्चे जरा छुरी ले आना बोर्ची खाने से, तो बच्चे जब जाते हैं तो छुरी यूं पकड़ ली यूं लाते हैं। अब सामने से वालदा आ गई, बच्चे आ गए, तेजी में बच्चे आ गए तो लगने का अंदेशा होता है। तो जब भी कोई छुरी वगैरह दें किसी को तो बच्चों को ये हिदायत दें कि छुरी को नीचे रखें। यही हाल आम बाजार में और मसाजिद के अंदर भी इस तरह तकलीफ देने वाली चीज से हिफाजत के लिए ये अदब बताया है। पांचवी ये है कि मस्जिद में अपनी गुमशुदा चीज करने का ऐलान न करें। और मैं ये हदीस आपको सुना चुका हूं कि एक आदमी मस्जिद में खड़े हुए कहने लगे भाइयों मेरा ऊंट खो चुका है। तो ऊंट तो मस्जिद में नहीं खोता, ऊंट तो बाहर खोता है। तो कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा करे कि तेरा ये ऊंट तुझे न मिले, ये बद्दुआ दी। और फरमाया कि मसाजिद इस तरह के ऐलानात के लिए मसाजिद नहीं बनी। लेकिन अगर कोई चीज मस्जिद ही में गिरी है, घड़ी गिर गई, बटुआ गिर गया, पैसे गिर गए, तो मस्जिद ही की गिरी हुई चीज का ऐलान मस्जिद के अंदर कर सकते हैं। छठा ये है कि मस्जिद में आवाज बुलंद न करें।
जोर जोर से लोगों की इबादत में खलल हो, जोर जोर से फोन आए, जनाब एक चीख लगी हुई है, इधर सारी मखलूक मुतवज्जे हो गई, फोन आए, आदमी दूर चला जाए, आराम से कोने में खड़े होकर के आराम से बात करे। तो आराम से गुफ्तगू करना, या उनको बता दे फोन वाले को, भाई मैं मस्जिद में हूँ, बाद में बात करूंगा। आपस में भी गुफ्तगू हो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में दो बंदे बैठे हुए बातें कर रहे थे। हजरत उमर ने एक सहाबी को हल्की सी कंकरी मारी, इधर आओ, इशारे से बुलाए। तो वो आए, कहा जाके इन दोनों को मेरे पास ले आओ। उन दोनों को ले आए। कौन हो तुम? कहा जी हम तो ताइफ से आए हैं और यहाँ मदीना में जियारत के लिए आए। तो कहा कि फरमाने लगे हजरत अमीरुल मोमिनीन कि अगर तुम मदीना मुनव्वरा के होते तो मैं तुम्हें सजा देता। तुम अल्लाह के रसूल की मस्जिद में आकर के जोर जोर से बातें कर रहे हो, तो जोर जोर से बातें मत किया करो। तो अगर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद के साथ एक मुल्हक जगह बनाई थी, फरमाएं जिसको शेर व शायरी करनी हो, बातचीत करनी हो, वहां चले जाए, मस्जिद के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। तो मस्जिद के अंदर बुलंद आवाज से गुफ्तगू करना जायज नहीं है। साथ में यह है कि दुनिया की बातें ना करें। और इस पर हदीस में आपकी खिदमत में पेश करूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मस्जिद के अंदर दुनियावी गुफ्तगू करने से नेकियां इस तरह जल जाती हैं जैसे सूखी लकड़ी आग में डालने से साफ सुथरी हो जाती है, जल जाती है, तो नेकियां जल जाती हैं। इसका ख्याल रखा जाए। और ये क़यामत की निशानियों में से मस्जिद को मरकज बनाना, चीखो पुकार के लिए जोर जोर से बातें करना, मस्जिद को मरकज बनाना दुनियावी गुफ्तगू के लिए, तो इससे अपनी मसाजिद को पाक रखा जाए, इसका ख्याल रखा जाए। इसी तरह आठवां अदब यह है, मस्जिद में बैठने की जगह में किसी से झगड़ा ना करे, मस्जिद में जगह को अपने लिए बुक ना करे कि बस मैं तो यही नमाज पढ़ूंगा, कहीं और नहीं पढ़ूंगा। जो पहले आ जाए, मिना मुना मन सबका, मीना के बारे में आपकी हिदायत थी कि जो पहले आकर के अपनी सवारी रोक ले, अपनी जगह को वो मुतय्यन कर ले, मीना उसकी जगह है, मीना किसी की जगह नहीं है। इसी तरह मस्जिद भी किसी की जागीर नहीं है। जो पहले आ गया और जहां खड़ा हो गया वहीं पर वो क्या करे, वो नमाज पढ़े। वो रुमाल मिसवाक रख करके चला गया और 1 मिनट पहले आ रहा है, तो ये ठीक नहीं है। बल्कि जो पहले आया है उसी का हक है। फिर आकर के बिल्कुल आखिरी लम्हे में पहुंचा, या इस तरफ हो जाओ, इस तरफ हो जाओ, बीच में घुस करके खड़े हो गए, तो ये भी ठीक नहीं है, मना फरमाया इसको। इसको अल्लाह के रसूल ने मना फरमाए हैं कि तुम आ तो गए पहली सफ में, लेकिन तुमने दाएं वाले को भी तकलीफ दी और बाएं वाले को भी तकलीफ दी। वो बेचारे पहले से बैठे हुए, तेरे आने की वजह से तुम्हें कुछ कहते नहीं है, और पूरी नमाज में वो ऐसे खड़े रहेंगे, आराम से वो सुकून से नमाज नहीं पढ़ सकेंगे तेरे इस शिद्दत के साथ आने की वजह से। तो ऐसा आदमी को नहीं करना चाहिए। नबी ये है कि जहां सफ में पूरी जगह ना हो वहां घुस करके लोगों पर तंगी पैदा ना करे। 10वीं ये है कि किसी नमाजी पढ़ने वाले के आगे से न गुजरे। इस सिलसिले में 3-4 हदीसें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फरमाएंगे जो नमाजी से आगे से गुजरे ना, वो गधा है, गधे का लफ्ज कहा। और दूसरा कि जो नमाजी के आगे से गुजरे वो तो शैतान है, उसको तो पकड़ के मारो, इसकी पिटाई करो, इसको इतनी अकल नहीं है। और जो नमाजी के आगे से गुजरे वो जो है वो 40 तक खड़ा रहे, यानी 40। अब अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने 40 दिन फरमाया, 40 महीने फरमाया, 40 साल फरमाया कि 40 साल तक खड़ा रहना वो उसको गवारा कर लेगा, लेकिन नमाजी के आगे से गुजरने का जो गुनाह है वो बहुत ज्यादा है। तो उसका ख्याल रखा जाए कि नमाजियों के आगे से आदमी को नहीं गुजरना चाहिए। इसी तरह मस्जिद में थूकने, नाक साफ करने से परहेज किया जाए। मस्जिद में थूकना, अब तो नहीं थूकते, अल्लाह का फजल है, इसका ख्याल लोग करते हैं। आप तशरीफ लाए तो आपने देखा कि जो किबले की तरफ दीवार थी वहां किसी ने कोई थूका हुआ था, तो साहबा कहते हैं हुजूर के चेहरे पे नागवारी के आसार। फिर आप खुद उठे, आपने अपने जो है वो लाठी के जरिए से, लकड़ी के जरिए से खुरच दिया और फिर फरमाया ये तो तुमने खुदा की तरफ थूका है, ये तो तुम किबले की तरफ थूकते हो, तुम इतने बेअदब हो।
بندہ مسلمان وہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے تو اللہ کی طرف تھوکے آدمی، اللہ کے گھر کی طرف تھوکتے ہو تم. اور جب تم میں سے کسی کو ایسا ہو تو اللہ کے رسول نے اپنا کپڑا نکالا، رومال نکالا، اور اس میں اللہ کے رسول نے تھوک کر کے بتایا. تھوک، یوں تھوکا، پھر اس کپڑے کو آپ نے یوں مسلا اور پھر کہا کہ ایسا کرے. ایسا نہ کرے کہ تم مسجد کے اندر تھوکو یا مسجد کے اندر ناک صاف کرو. اسی وجہ سے آدمی کو چھوٹی کوئی چیز، ٹیشو پیپر ہو یا کوئی بھی چیز رکھنی چاہیے کہ آدمی اس میں ناک یا تھوک وغیرہ جو بھی اس کو تنگ کرے وہ اس کے اندر صاف کرے. وہ اسی طرح اپنی انگلیاں نہ چٹ کھائے مسجد کے اندر، اور ایسا نماز کے انتظار میں بیٹھے تو ایسے نہ بیٹھے، یہ انگلیاں اس پر ڈال. ویسے ایسے بیٹھنا جائز ہے، لیکن مسجد میں آ گئے آپ اور 2 4 5 منٹ باقی ہے تو یہ تو مسجد بھی پڑھ لی، سنت بھی پڑھ لی آپ نے، اب یوں نہ بیٹھے. کیوں یوں نہ بیٹھے؟ اس لیے کہ ایسا بیٹھنا یہ کیا ہے، یعنی ایسا بیٹھنا، یہ آدمی جو بیٹھا ہے یہ آدمی نماز میں بیٹھا ہے، تو نماز میں ایسا کرنا مکروہ ہے. تو نماز کے انتظار میں ایسا بیٹھنے والا بھی ایسا نہ کرے، ورنہ مطلق ایسے بیٹھنا وہ کیا ہے، آپ سے ثابت ہے اور اللہ کے رسول اس طرح بیٹھے ہیں. تو انگلیاں چٹکائے بھی نہیں اور انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالے بھی نہیں. تیرہویں یہ ہے کہ اپنے بدن کے کسی حصے سے کھیل نہ کرے. کوئی مسجد کھیل کی جگہ نہیں ہے، موبائل نکال کے آگے جی جگہ نہیں، وہاں کونے میں بیٹھ گئے، موبائل چل رہی جی، دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں جی، میسیجز دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ بھیج رہے ہیں. تو مسجد میں آتے وقت موبائل فون بند کر کے آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس سے اپنی حفاظت کرے. اپنے بدن سے کھیلنا، موبائل سے کھیلنا، موبائل کے اندر چیزوں کو دیکھنا، لوگوں کو جواب دینا، یہ سب باتیں کیا ہیں، غفلت کی باتیں ہیں. اس سے آدمی اپنی حفاظت کرے. 14ویں یہ ہے کہ نجاسات سے مسجد کو پاک صاف رکھے. کسی چھوٹے بچے یا مجنون پاگل وغیرہ کو مسجد میں ساتھ لے کے نہ جائے. سمجھدار بچے کو لائیں، وہ اپنے ساتھ کھڑا کریں، اور جو بے سمجھ بچہ ہو، ناسمجھ بچہ ہو، مسجد کے آداب سے واقف نہ ہو، تو آپ نے فرمایا جنبوا صبیانکم المساجد والمجانین، اپنے بچوں، اپنی مسجدوں کو بچا کے رکھو، پاگلوں سے بچا کے رکھو، اور جو ہے وہ بچوں سے بچا کر کے رکھو. 15ویں یہ ہے کہ وہاں کثرت سے اللہ کے ذکر میں مصروف رہے. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ 15 آداب لکھنے کے بعد فرمایا جس نے یہ کام کر لیے اس نے مسجد کا حق ادا کر لیا، اور مسجد اس کے لیے امان کی جگہ بن جائے گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.